Hello dear learners, welcome to the e-lecture on the short story titled The Blind Dog, written by one of the famous Indian English writers R.K. Narayan. Before beginning the analysis of the short story, let's look at a little biography of R.K. Narayan. R.K. Narayan's full name is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. He was an Indian writer known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. It was a trio of R.K. Narayan, Mulk Raj Anand and Raja Rao. R.K. Narayan is one of the most famous Indian writers. He achieved great success as a novelist and short story writer. His works have been translated in many languages across countries, and he is widely known among the fraternity of English literature and Indian English literature scholars. The story The Blind Dog is one of the most popular stories of R.K. Narayan from his collection Malgudi Days, published in 1943, that discusses the story of a dog and his loyalty towards his blind master, who is a beggar. As you can see in the image itself, that there is a dog and there is a blind man. Now when you will read the story, you will come to know that the dog was actually not blind. The man was blind, and the man was a beggar and a blind beggar. So how come the story is titled The Blind Dog when actually the dog was not blind? So this we will discuss while analyzing the short story The Blind Dog word to word in today's e-lecture. So let's begin our e-lecture on the short story The Blind Dog by R.K. Narayan. It was not a very impressive or high-class dog. It was one of those commonplace dogs one sees everywhere. Color of white and dust, tail mutilated at a young age by God knows whom, born in the street, and bred on the leavings and garbage of the marketplace. So the writer begins the short story with a very detailed description of the dog. The writer says that the dog was not a very impressive or high class dog. ऐसा डॉग नहीं था कि जिसको देखकर कोई बहुत इम्प्रेस्ड हो जाए, और ना ही किसी हाई क्लास पर्सन को वो बिलोंग करता था. वो एक ऐसा डॉग था, कॉमन प्लेस डॉग्स जो कि आपको हर कहीं दिख जाते हैं. कलर ऑफ वाइट एंड डस्ट, टेल म्यूटिलेटेड एट अ यंग एज बाय गॉड नोज हुम. उसकी जो टेल है, जो पूंछ है, उसे म्यूटिलेट कर दिया गया है, कुछ हद तक काट दिया गया है, और बहुत छोटी उम्र में ही काट दिया गया होगा, बट गॉड नोज हुम, हमें नहीं पता किसने काटा. जो स्ट्रीट में ही पैदा हुआ है और जो मार्केट प्लेस में लोग कुछ छोड़ जाते हैं, लीविंग्स जो पड़ी रहती हैं, गार्बेज जो कचरा होता है, उसी पर पला बड़ा था. ही हैड स्पॉटी आईज एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरियज एंड नीडलेस प्यूग्नेसिटी. ही हैड स्पॉटी आईज, और उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका कैरियज है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत ही अनडिस्टिंग्विश्ड है. अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब कुछ बहुत एक्सेप्शनल सा नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी सा है. एंड नीडलेस प्यूग्नेसिटी, उसकी जो प्यूग्नेसिटी है, प्यूग्नेसिटी मीन्स हरदम लड़ते रहने की जो उसकी एटीट्यूड है, वो बिल्कुल जो नीडलेस होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसा उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर है. Before he was 2 years old, he had earned the scars of 100 fights on his body.
मात्र 2 साल की एज में ही उस डॉग ने कम से कम 100 फाइट्स कर ली होगी और उन फाइट्स के स्कार्स निशान उसकी बॉडी पर देखे जा सकते हैं. When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the eastern gate of the market. जब बहुत गर्मी होती है दोपहर में और उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो कर्ल अप होकर बिल्कुल सिकुड़ कर किसी कलवर्ट, जो मार्केट के ईस्टर्न गेट पर जो कलवर्ट, जो पुलिया बनी हुई है, उसके नीचे रेस्ट करने लगता था. इन द इवनिंग्स ही सेट आउट ऑन हिज डेली राउंड्स, और शाम को फिर से वही अपने डेली के चक्कर लगाने वो निकल जाया करता था. लोफ्ड इन द सराउंडिंग स्ट्रीट्स एंड लेन्स, आसपास की गलियों में घूमता रहता था. इंगेज्ड हिमसेल्फ इन स्किर्मिशेस, छोटे छोटे झगड़ों में खुद को हमेशा उलझाए रखता था. पिक्ड अप एडिबल्स ऑन द रोड साइड पे कुछ भी खाने का अगर पड़ा होता था तो उसे उठा लेता था. एंड वॉज बैक एट द मार्केट गेट बाय नाइट फॉल, और रात आते आते वापस मार्केट गेट पर पहुंच जाया करता था. दिस लाइफ वेंट ऑन फॉर 3 years, 3 साल तक यही कुछ चलता रहा. एंड देन अ चेंज इन हिज लाइफ अकर्ड, और अचानक से उसकी लाइफ में एक चेंज आया. अ बेगर ब्लाइंड इन बोथ आईज अपीयर्ड एट द मार्केट गेट, एक बेगर जो कि दोनों आंखों से अंधा था मार्केट गेट में आया. एन ओल्ड वुमन लेड हिम अप देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे एक बूढ़ी औरत लेकर आई बहुत सुबह. सीटेड हिम एट द गेट, उसे गेट पर बैठाया. एंड केम अप अगेन एट मिड डे विद सम फूड, और वो फिर से दिन में आई कुछ खाना लेकर. गैदर्ड हिज कॉइन्स, जो भी उसको एल्म्स, भिक्षा जो भी मिली उसके कॉइन्स उठाए. एंड टुक हिम होम एट नाइट, और उससे रात को घर ले जाया करती थी. द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय, डॉग पास में ही सो रहा था. ही वॉज स्टर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड, अचानक से खाने की खुशबू से वो जागा. ही गॉट अप, केम आउट ऑफ हिज शेल्टर, वो अपनी शेल्टर, जो उसकी छोटी सी उसने कोई डेन बना रखी थी या वो जो लेटा हुआ जहाँ पर था वहाँ से आया. एंड स्टूड बिफोर द ब्लाइंड मैन, और ब्लाइंड मैन के सामने आकर खड़ा हो गया. वैगिंग हिज टेल, अपनी टेल को वो हिलाने लगा. एंड गेजिंग एक्सपेक्टेंटली एट द बाउल, और वो जो खाने का बाउल था बेगर के हाथ में उसे घूरने लगा. एक्सपेक्टेंटली मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसको मिल जाएगा कुछ खाने को. एज ही वॉज ईटिंग हिज स्पार्स मील, और वो जो बेगर था वो अपनी स्पार्स मील, ऐसी मील जो कि बिल्कुल बिखरी हुई सी थी, बहुत वेल मैनर्ड में परोसी हुई नहीं थी, उसे जब वो अपनी मील खा रहा था उसी समय डॉग उसके सामने जाकर खड़ा हो गया. द ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड आस्क्ड हु इज़ देयर, ब्लाइंड मैन ने अपने आसपास हाथ से इशारा करते हुए देखा और पूछा यहाँ कौन है. एट विच द डॉग वेंट अप एंड लिक्ड हिज हैंड, और ऐसा करने पर डॉग उसके पास गया और उसके हाथ को लिक करने लगा, चाटने लगा. द ब्लाइंड मैन स्ट्रोक्ड इट्स कोट जेंटली टेल टू ईयर, ब्लाइंड मैन ने जो उसका कोट, जो फर है डॉग का, डॉग की बॉडी पर, उसे कान से लेकर पूंछ तक पूरा स्ट्रोक किया हाथ से. एंड सेड व्हाट अ ब्यूटी यू आर, कम विथ मी, तुम कितने खूबसूरत हो, मेरे पास आओ. ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड, उसने मुट्ठी भर खाना फेंका. विच द डॉग एट ग्रेटफुली, जो कि डॉग ने बहुत ही ग्रेटफुली, बहुत ही एहसानमंद होते हुए खाया. इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती शुरू करने का एक बहुत ही शुभ मौका था. दे मेट एवरी डे देयर, अब वो डॉग और बेगर वहाँ रोज़ मिलने लगे. एंड द डॉग कट ऑफ मच ऑफ इट्स रैम्बलिंग टू सिट अप बिसाइड द ब्लाइंड मैन, और डॉग जो पहले रैम्बलिंग्स करता रहता था, वॉन्डरिंग्स इधर उधर घूमता रहता था, उसमें उसने कटौती की और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो ब्लाइंड मैन के पास बैठने लगा. एंड वॉच हिम रिसीव एल्म्स मॉर्निंग टू इवनिंग, और देखता रहता था कि कैसे सुबह से शाम तक बेगर को एल्म्स भिक्षा मिलती रहती थी. In course of time, observing him, the dog understood that the passers-by must give a coin. धीरे धीरे डॉग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कोई भी वहाँ से गुजरेगा, पासर्स बाय, जो कोई भी वहाँ से गुजर रहा है, उसे एक कॉइन ज़रूर डालना है. एंड whoever went away without dropping a coin was chased by the dog. और अगर कोई बिना कॉइन ड्रॉप किए चला जाता था तो डॉग उसका पीछा करने लगता था. He tugged the edge of their clothes by his teeth, वो उनके कपड़ों के कॉर्नर्स को अपने दांतों से पकड़ लेता था. And pulled them back to the old man at the gate, और उसे उन जो व्यक्ति चले जाते थे बिना एल्म्स दिए उन्हें खींच कर ले आता था गेट तक. And let go only after something was dropped in his bowl, और उन्हें तभी जाने देता था जब वो लोग बाउल में कुछ ड्रॉप कर देते थे.
Among those who frequented this place was a village urchin. जो लोग अक्सर वहाँ आया करते थे उनमें से ही एक विलेज अर्चिन था, बदमाश सा बच्चा था, who had the mischief of a devil in him, जो कि मानो बिल्कुल शैतान था. He liked to tease the blind man by calling him names. वो उसे calling him names मतलब abusive language यूज़ करके वो blind man को tease करता रहता था. And by trying to pick up the coins in his bowl, और बार बार उसके बाउल से coins उठाने की कोशिश करके भी beggar को परेशान करता था. The blind man helplessly shouted and cried and whirled his staff. जो ब्लाइंड मैन था हेल्पलेसली बिल्कुल बेबस सा चिल्लाता रहता, चीखता रहता, और जो उसकी स्टैफ थी, स्टैफ एक ऐसी लकड़ी होती है जिसके सहारे ब्लाइंड पीपल चलते हैं, उस स्टैफ को वो इधर उधर घुमाता रहता था. ऑन थर्सडेज दिस बॉय अपीयर्ड एट द गेट. ये जो बच्चा था ये थर्सडेज को आया करता था. कैरिंग ऑन हिज हेड अ बास्केट लोडेड विद क्यूकम्बर और प्लेंटेन. इस बच्चे के सर पर एक बास्केट होती थी जिसमें क्यूकम्बर्स या फिर बनानाज हुआ करते थे. Every Thursday afternoon it was a crisis in the blind man's life. Every Thursday afternoon मानो blind beggar की लाइफ में एक परेशानी सी आ जाती थी, एक मुसीबत आ जाती थी. A seller of bright colored but doubtful perfumes with his wares mounted on a wheeled platform. A man who spread out cheap storybooks on a gunny sack. Another man who carried colored ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arc. उस जहाँ पर वो ब्लाइंड बेगर रहता था, बैठा रहता था, वहीं पर एक परफ्यूम सेलर था जो कि एक व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर अपने वेयर्स, अपने आर्टिकल्स जो उसे बेचने हैं उन्हें लेकर खड़ा रहता था. एक स्टोरी बुक बेचने वाला पर्सन था, एक और पर्सन था जो कि कलर्ड रिबन्स को बेचता था. On a Thursday when the young man appeared at the eastern gate, one of them remarked, "Blind fellow, here comes your scourge." और थर्सडे को जब वो यंग मैन आता था तो उनमें से कोई एक कहने लगता कि ब्लाइंड फेलो, यहाँ वो पर्सन आ गया है जो तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है. ओ गॉड, इज़ दिस थर्सडे? क्या आज थर्सडे है? ही वेल्ड. वो बहुत दुख मनाते हुए कहता. ही स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड कॉल्ड, डॉग डॉग कम हियर, वेयर आर यू. उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहना शुरू किया कि तुम कहाँ हो डॉग. ही मेड द पेक्यूलियर नॉइज विच ब्रॉट द डॉग टू हिज साइड. वो बिल्कुल अजीब सी आवाज़ निकालता जिससे डॉग उसके साइड आ गया. ही स्ट्रोक्ड हिज हेड एंड मटर्ड. उसने उसके सर को, हेड को स्ट्रोक किया और धीरे से आवाज़ में कहा, डोंट लेट दैट लिटिल रास्कल. At this very moment the boy came up with a leer on his face. ब्लाइंड मैन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, उससे पहले ही वो जो बॉय था जो कि ब्लाइंड मैन को बहुत ट्रबल करता था, वो अपने फेस पर वही अनप्लीजेंट सी स्माइल, अनप्लीजेंट सा लुक लेकर पहुंच गया. ब्लाइंड मैन, स्टिल प्रिटेंडिंग यू हैव नो आईज. अभी भी वही ड्रामा कर रहे हो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं. इफ़ यू आर रियली ब्लाइंड यू शुड नॉट नो दिस आइदर. अगर तुम सच में अंधे हो तो तुम्हें यह भी पता नहीं होना चाहिए. ही स्टॉप्ड, और ये कहते हुए वो लड़का रुका. हिज हैंड मूविंग टूवर्ड्स द बाउल, और उसने अपना हाथ बाउल की तरफ बढ़ाया. द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम. डॉग उस पर चढ़ गया एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन द बॉयज़ रिस्ट, और बॉय की कलाई पर अपने जॉज, अपने दांतों से हमला कर दिया. द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड. लड़के ने अपना हाथ छुड़ाया एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाने के लिए भागा. द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम. लेकिन जो डॉग था वो उसके पीछे पड़ गया एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट, और उससे मार्केट से बाहर निकाल दिया. सी द mongrel's affection for this old fellow, marveled the perfume vendor. जो परफ्यूम बेचता था वो कहने लगा कि इस डॉग का अफेक्शन देखो, इस ओल्ड फेलो के प्रति, इस बेगर के प्रति. One evening at the usual time the old woman failed to turn up. एक दिन जिस टाइम पर वो ओल्ड वुमन आया करती थी वो नहीं आई. एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट. ब्लाइंड मैन उसका इंतज़ार करता रहा. वरिंग एज द इवनिंग ग्रू इनटू नाइट. और वो चिंता करने लगा बिकॉज शाम से अब रात होने लगी थी. एज ही सेट फ्रेटिंग देयर अ नेबर केम अप एंड सेड. और क्योंकि वो वहाँ बहुत उदास सा, दुखी सा बैठा था, एक नेबर उसके पास आया और कहने लगा, सैमी,
Don't wait for the old woman. She will not come again. She died this afternoon. नेबर ने आकर उसे बताया कि उस ओल्ड वुमन का इंतज़ार मत करो, वो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि आज आफ्टरनून को उसकी डेथ हो गई है. द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड. और ओल्ड वुमन की डेथ से उस ब्लाइंड मैन का जो एकमात्र घर था वो भी छिन गया. एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड, और एकमात्र पर्सन था जो कि पूरे संसार में एक ही था जो उसकी मदद करता था, वो भी उससे छिन गया. द रिबन वेंडर सजेस्टेड, हियर टेक दिस वाइट टेप. ही हेल्ड अ लेंथ ऑफ द वाइट कॉर्ड विच ही हैड बीन सेलिंग. आई विल गिव दिस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. और वो जो रिबन सेलर था, रिबन वेंडर था, वो ब्लाइंड मैन के पास गया और कहने लगा कि तुम ये वाइट टेप ले लो. आई विल गिव दिस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. ये मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री दूंगी. टाई इट टू द डॉग. इस टेप को अपने डॉग से बांध दो. एंड लेट हिम लीड यू अबाउट इफ़ ही इज़ रियली सो फॉन्ड ऑफ यू. और उस डॉग को अब तुम्हें लीड करने दो अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद करता है. लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न नाउ. और यहाँ से डॉग की लाइफ में एक नया टर्न आया. ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वूमन. अब वो ओल्ड वूमन की जगह ले लिया. डॉग ने ओल्ड वूमन की जगह ले लिया. ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कम्प्लीटली, जिस वजह से उस डॉग की जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह चली गई. हिज वर्ल्ड केम टू बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय द लिमिट्स ऑफ द वाइट कॉर्ड विच द रिबन वेंडर हैड स्पेयर्ड. उसका जो पूरा वर्ल्ड था, उसकी जो पूरी दुनिया थी, वो केवल उस वाइट कॉर्ड के चारों तरफ घूमने लगी जो कि उस रिबन वेंडर ने दी थी. ही हैड टू फॉरगेट होलसेल ऑल हिज ओल्ड लाइफ. उसे अपना पुराना जो लाइफ था, पुराना जो जीवन था, वो पूरी तरीके से भूलना पड़ा. ऑल हिज ओल्ड हॉर्न्स, जो भी पहले वो इधर उधर घूमता रहता था, वो सब उसे भूलना पड़ा. ही सिंपली हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग. उसे हमेशा उस स्ट्रिंग, उस टेप, उस वाइट कॉर्ड के पास ही खड़े रहना पड़ता था. When he saw other dogs, friends और foes, जब भी वो दूसरे कुत्ते उसके दोस्त या दुश्मन देखा करता था, instinctively he sprang up. वो उसकी जो इंस्टिंक्ट थी उस वजह से वो खड़ा हो जाता. Tugging the string, बार बार उस टेप से टग करता रहता. And this invariably earned him a kick from his master. और ऐसा करने पर उसका मास्टर उसे किक दिया करता था. Rascal, want to tumble me down? मुझे गिराना चाहते हो? Have sense. In a few days the dog learned to discipline his instinct and impulse. और कुछ ही दिनों में डॉग ने अपने बेसिक नेचर को डिसिप्लिन कंट्रोल करना सीख लिया. He ceased to take notice of other dogs. उसने दूसरे डॉग्स को देखना बंद कर दिया. Even if they came up and growled at his side, अगर वो डॉग्स उसकी तरफ आ भी जाते और उसको देखकर ग्राउल करते तो भी वो उनके पास नहीं जाता. He lost his own orbit of movement and contact with his fellow creatures. अब वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, अपनी मर्जी से वो कहीं नहीं जा सकता था. और जो उसके फेलो क्रीचर्स, उसके साथ के जो भी क्रीचर्स थे, उनसे उसका हर तरीके से कांटेक्ट छूट गया. टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस हिज मास्टर गेन्ड. डॉग ने बहुत कुछ खोया और डॉग के इस खोने पर उसके मास्टर को काफ़ी फ़ायदा हुआ. ही मूव्ड अबाउट एज ही हैड नेवर मूव्ड इन हिज लाइफ. अब वो बेगर ऐसे घूमता था जैसा वो अपनी लाइफ में कभी नहीं घूमा. ऑल डे ही वॉज ऑन हिज लेग्स. पूरे दिन वो ब्लाइंड बेगर चलता रहता. लेड बाय द डॉग. डॉग की गाइडेंस में, डॉग की लीडरशिप में वो चलता रहता. विद द स्टाफ इन वन हैंड, उसके एक हाथ में उसकी छड़ी होती. एंड द डॉग लीड इन द अदर, और दूसरे हाथ में वो डॉग उसे चलाता रहता. ही मूव्ड आउट ऑफ हिज होम. वो अपने घर से निकलता. अ कॉर्नर इन अ चॉल्ट्री वरांडा अ फ्यू यार्ड्स ऑफ द मार्केट. उसका घर जो था वो चॉल्ट्री वरांडा के कॉर्नर में था, मार्केट से कुछ ही यार्ड्स दूर था. ही हैड मूव्ड इन देयर आफ्टर द ओल्ड वुमन्स डेथ. वो उस चॉल्ट्री में ओल्ड वुमन की डेथ के बाद शिफ्ट हो गया था. ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे. वो सुबह जल्दी ही निकल जाता था. ही फाउंड दैट ही कुड ट्रेबल हिज इनकम बाय मूविंग अबाउट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन प्लेस. उसे पता लगा कि वो अपनी इनकम को तिगुना कर सकता है घूमने से, ना केवल एक ही जगह बैठने से. He moved down the Chowdhury street, and wherever he heard people's voices, he stopped and held out his hands for alms. अब वो
गलियों में घूमता रहता और जहाँ कहीं भी उसे लोगों की आवाज़ सुनाई देती वहीं रुक जाता और भिक्षा पाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ही लेफ्ट नथिंग आउट, उसने कुछ नहीं छोड़ा था। ही गेव अ टग व्हेन ही वांटेड द डॉग टू स्टॉप, वो एक टग ज़ोर से उस कॉर्ड को खींचता था जब भी वो चाहता था कि डॉग रुक जाए। एंड शाउटेड लाइक अ बुलॉक ड्राइवर व्हेन ही वांटेड हिम टू मूव ऑन, और जैसे कोई बैलों को चलाने वाला होता है और वो चिल्लाता है अपने बैलों को चलाने के लिए, ऐसे ही ब्लाइंड बेगर डॉग को इंस्ट्रक्ट किया करता था। द डॉग प्रोटेक्टेड हिज फीट फ्रॉम गोइंग इनटू पिट्स, डॉग ब्लाइंड बेगर के पैरों को गड्ढों में गिरने से बचाता और स्टम्पिंग अगेंस्ट स्टेप्स और स्टोन्स या सीढ़ियों या पत्थरों से टकराने से बचाता। एंड टुक हिम अप इंच बाय इंच ऑन सेफ ग्राउंड एंड स्टेप्स, और उसे सेफ जगह ले जाता। फॉर दिस साइड पीपल गेव कॉइन्स एंड हेल्प्ड हिम, और ऐसे नज़ारों पर लोग ब्लाइंड बेगर को कॉइन्स दिया करते थे और उसकी मदद करते थे। चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड हिम एंड गेव हिम थिंग्स टू ईट, बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो जाते थे और उसे कुछ खाने को देते थे। अ डॉग इज़ एसेंशियली एन एक्टिव क्रीचर who punctuates his hectic rounds with well-defined periods of rest. डॉग बेसिकली एक बहुत ही एक्टिव क्रीचर होता है और उसे अपने हेक्टिक राउंड्स से रेस्ट करने के लिए कुछ कुछ समय का रेस्ट भी ज़रूरी होता है। बट नाउ दिस डॉग henceforth टू बी नोन एज टाइगर, यहाँ से उस डॉग का नाम टाइगर हो गया है, हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट, लेकिन टाइगर का सारा रेस्ट, सारा आराम खो गया है, छिन गया है। He had rest only when the old man sat down somewhere. वो केवल तभी रेस्ट कर सकता था जब ओल्ड मैन कहीं बैठ जाया करता था। At night the old man slept with the cord turned around his finger. और रात में भी ब्लाइंड मैन उसके जो कॉर्ड थी जिससे उसने उस डॉग को बांधा हुआ था उसे अपनी फिंगर से बांधकर सोया करता था। I can't take chances with you, he said. उसने ब्लाइंड बेगर कहा करता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई चांस, कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। A great desire to earn more money than ever before seized his master. पैसा कमाने की जो चाह है, जो लालसा है, उस लालसा ने उसके मास्टर को सीज कर लिया है, जकड़ लिया है। So that he left any resting a waste of opportunity. इसीलिए अब उसने रेस्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे लगता था रेस्ट करने का मतलब है कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी को खो रहा हूँ। एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूसली ऑन हिज फीट, और इस वजह से डॉग को भी हमेशा चलते रहना पड़ता था। समटाइम्स हिज लेग्स रिफ्यूज्ड टू मूव, कभी कभी डॉग इतना थक जाया करता था कि उसके लेग्स उसका साथ छोड़ देते थे। बट इफ़ ही स्लोड डाउन इवन स्लाइटली, लेकिन अगर वो थोड़ा भी बहुत धीरे चलने लगता, हिज मास्टर गोडेड हिम ऑन फियर्सली विद हिज स्टैफ, तो उसका जो मास्टर है अपने छड़ी से उसको गोड करने लगता, अपनी छड़ी उसे चुभोने लगता। द डॉग वाइंड एंड ग्रोन्ड अंडर दिस थ्रस्ट, और इस टॉर्चर के बदले में डॉग चिल्लाने लगता, दुख से चीखने लगता। डोंट वाइन यू रास्कल, डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या तो मैं तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं देता हूँ? यू वॉन्ट टू लोफ, डू यू, तुम्हें घूमना है? swore the blind man. The dog lumbered up and round the market place with slow steps. वो बहुत ही निराश सा, डिसअपॉइंटेड सा मार्केट प्लेस में धीरे धीरे कदमों से घूमता रहता, टाइड डाउन टू द ब्लाइंड टायरेंट, और वो अपने ब्लाइंड मास्टर, ब्लाइंड टायरेंट जो तानाशाह बन चुका है अपनी ग्रेट डिज़ायर की वजह से, उसे बंधा हुआ रहता। लॉन्ग आफ्टर द ट्रैफिक एट द मार्केट सीज्ड, यू कुड हियर द नाइट stabbed by the far off wail of the tired dog. जब मार्केट का शोर बिल्कुल बंद हो जाता, ट्रैफिक का, रात में, उस समय आप किसी बहुत ही थके हुए डॉग की कहीं दूर से आने वाली वेल, चीख सुन सकते हैं। इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, डॉग जैसा पहले दिखता था अब वो वैसा नहीं दिखता था। एज मंथ्स रोल्ड ऑन, बोन्स स्टक अप एट हिज हॉन्चेस एंड रिब्स वर रिलीव्ड थ्रू हिज फेडिंग कोट। जैसे से महीने निकलते गए, डॉग का जो फ्लैश था वो मानो ख़त्म सा होता गया, उसकी बोन्स दिखने लगी, उसका कोट, जो फर कोट था वो फेड होने लगा, उसकी रिब्स दिखने लगी। The ribbon seller, the novel vendor and the perfumer observed it one evening when business was slack. जब शाम को बिजनेस बहुत कम था, तब
तीनों ने, रिबन सेलर, नॉवल वेंडर और परफ्यूमर ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी एंड हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस अमंग देमसेल्व्स, और आपस में एक दूसरे से बात की. इट रेंट्स माई हार्ट टू सी दैट पुअर डॉग स्लेविंग. इस पुअर डॉग को एक गुलाम बनता हुआ देखना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है. कांट वी डू समथिंग, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? द रिबन सेलर रिमार्क्ड दैट रास्कल हैज़ स्टार्टेड लेंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट. जो ब्लाइंड बेगर है उसने अब ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया है, इंटरेस्ट पर मनी देना शुरू कर दिया है. आई हर्ड इट फ्रॉम द फ्रूट सेलर. रिबन सेलर ने ये बात फ्रूट सेलर से सुनी थी. ही इज़ अर्निंग मोर देन ही नीड्स. जितने की उसे ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा कमा रहा है. ही हैज़ बिकम अ वेरी डेविल फॉर मनी. पैसों के लिए अब वो एक राक्षस बन गया है. एट दिस पॉइंट द परफ्यूमर्स आइज कॉट द सिजर्स डैंगलिंग फ्रॉम द रिबन रैक. और इसी समय परफ्यूमर ने रिबन रैक पर सिजर्स लटकी हुई देखी. गिव इट हियर, ही सेड एंड मूव्ड ऑन विद द सिजर्स इन हैंड. ये सिजर्स मुझे दो, ये कहकर अपने हाथ में सिजर्स लेकर परफ्यूमर आगे बढ़ा. द ब्लाइंड मैन वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द ईस्टर्न गेट. द डॉग वॉज स्ट्रेनिंग द लीड. डॉग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था अपने ब्लाइंड बेगर को लेते हुए. There was a piece of bone lying on the way and the dog was training to pick it up. रास्ते में कहीं पर एक piece of bone लटकी हुई थी, lying पड़ी हुई थी, और डॉग बहुत कोशिश कर रहा था उसे उठाने की. The lead became taut and hurt the blind man's hand. वो जो लीड थी वो काफ़ी टाइट होने की वजह से उससे ब्लाइंड मैन के हाथ में तकलीफ हुई. एंड ही tugged the string and kicked till the dog howled. और उसने वही स्ट्रिंग को खींचते हुए डॉग को किक किया तब तक जब तक कि डॉग हाउल चिल्लाने ना लगा. इट हाउल्ड बट कुड नॉट पास द बोन लाइटली. डॉग चिल्लाने लगा लेकिन वो उस बोन को भी जाने नहीं देना चाह रहा था. इट ट्राइड टू मेक अनदर डैश फॉर इट. डॉग ने फिर से कोशिश किया उसे पकड़ने का. द ब्लाइंड मैन वॉज हीपिंग कर्सेज ऑन इट. ब्लाइंड मैन उसे बार बार कर्स कर रहा था, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था. द परफ्यूमर स्टेप्ड अप. ऐसे में परफ्यूमर आया, applied the scissors and snipped the cord. और जिस कॉर्ड से डॉग बंधा हुआ था उस कॉर्ड को काट दिया. The dog bounced off and picked up the bone. डॉग उछल कर गया और अपनी बोन को उसने उठाई. The blind man stopped dead where he stood. ब्लाइंड मैन बिल्कुल वहीं खड़ा हो गया जहाँ वो खड़ा था, with the other half of the string dangling in his hand. और जो कटी हुई स्ट्रिंग थी उसका आधा हिस्सा उसके हाथ में डैंगल लटक रहा था. Tiger, tiger, where are you? He cried. The perfumer moved away quietly, muttering, "You heartless devil, you will never get at him again." परफ्यूमर वहाँ से चुपचाप निकल गया और अपने अंदर बड़बड़ाने लगा कि अब तुम कभी भी उस डॉग को नहीं पकड़ पाओगे. He has his freedom. अब उसे उसकी फ्रीडम मिल गई है. The dog went off at a top speed. डॉग अपनी पूरी तेज़ी से भाग गया. He nosed about the ditches happily. वापस वही डिचेस में सूंघने लगा खुशी खुशी. Hurled himself on other dogs. जाकर दूसरे डॉग से मिलने लगा. And ran round and round the fountain in the market square, barking, his eyes sparkling with joy. आप उसकी फ्रीडम को देखिए, वो अपनी फ्रीडम से कितना खुश है कि वापस वो अपनी पहले वाली लाइफ में चला गया. He returned to his favorite haunts and hung about the butcher's shop, the tea stall and the bakery. वापस उसके पहले वाली जो फेवरेट जगह थी वहीं चला गया और इधर उधर घूमने लगा. The ribbon vendor and his two friends stood at the market gate and enjoyed the sight immensely as the blind man struggled to find his way about. रिबन वेंडर और उसके जो दो दोस्त थे वो मार्केट गेट पर खड़े रहे और इस नज़ारे को देखकर वो लोग बहुत खुश थे कि कैसे ब्लाइंड मैन को अपना रास्ता ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था. ही स्टूड रूटेड टू द स्पॉट. वो वहीं खड़ा रहा. वेविंग हिज स्टिक. अपनी छड़ी हिलाता रहा. ही फेल्ट एज इफ ही वर हैंगिंग इन मिड एयर. उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे हवा के बीचों बीच हैंग कर दिया गया है. ही वॉज वेलिंग. वो बहुत दुख में चिल्ला रहा था. Oh, where is my dog? विलाप कर रहा था. Where is my dog? Won't someone give him back to me? क्या मुझे कोई मेरा डॉग वापस ला कर देगा? I will murder it when I get it again. जब वो मुझे दोबारा मिलेगा मैं उसे मार दूंगा. He groped about, tried to cross the road, came near being run over by a dozen vehicles at different points, tumbled and struggled and gasped.
अब वो बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहा था रोड क्रॉस करने की। लगभग डोजन व्हीकल्स से कुचलकर मरने से वो बचा। गिर रहा था, उठ रहा था और अपना रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। He would deserve it if he was run over, this heartless blackguard, they said observing him. वो जो तीनों थे उन्होंने कहा कि अच्छा हो अगर इसे कुचल दिया जाए, ये यही डिजर्व करता है। However, the old man struggled through and with the help of someone found his way back to his corner in the chowltry veranda. ओल्ड मैन ने काफ़ी स्ट्रगल किया और उसे कोई मिल गया था जो उसे वापस उसके चौल्ट्री वाले कॉर्नर पर पहुंचा दे। एंड सैंक डाउन ऑन हिज गनी सैक बेड, और वापस वो अपने बेड पर बिस्तर पर सो गया। हाफ फेंट विद द स्ट्रेन ऑफ हिज जर्नी, उसके आज की जर्नी की थकान की वजह से मानो वो लगभग बेहोश सा था। He was not seen for 10 days, 15 days and 20 days. 10, 15, 20 दिनों से किसी ने उस ब्लाइंड बेगर को नहीं देखा था। नॉर वॉज द डॉग सीन एनीवेयर, ना ही कहीं वो डॉग दिख रहा था। दे कॉमेंटेड अमंग देमसेल्व्स, जो परफ्यूमर, नॉवल वेंडर और एक और जो रिबन वेंडर था, उन लोगों ने आपस में बात की। द डॉग मस्ट बी लोफिंग ओवर द होल अर्थ फ्री एंड हैप्पी, कि वो डॉग अब इधर उधर पूरी अर्थ पे मानो घूम रहा होगा, फ्री एंड हैप्पी। द बेगर इज़ परहैप्स गॉन फॉर एवर, और मानो इस बेगर तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। हार्डली वॉज दिस सेंटेंस अटर्ड व्हेन दे हर्ड द फैमिलियर टैप टैप ऑफ द ब्लाइंड मैन स्टैफ। ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही था कि इतनी देर में उन्हें वही जाना पहचाना सा ब्लाइंड मैन की छड़ी का टैप टैप साउंड सुनाई दिया। दे सॉ हिम अगैन कमिंग अप द पेवमेंट, उन्होंने ब्लाइंड मैन को फिर से पेवमेंट की तरफ आते हुए देखा, लेड बाय द डॉग, और अगैन उसके साथ एक डॉग था। लुक लुक, दे क्राइड, ही हैज़ अगैन गॉट एट इट एंड टाइड इट अप, उसे ये फिर से मिल गया है डॉग और उसने उसे फिर से बांध दिया है। द रिबन सेलर कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, रिबन सेलर अपने आप को रोक नहीं पाया। ही रैन अप एंड सेड, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, तुम कहाँ थे इतने दिनों से। नो वॉट हैपेंड, क्राइड द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन ने कहा तुम्हें पता है क्या हुआ था। दिस डॉग रैन अवे, ये भाग गया था। आई शुड हैव डाइड इन अ डे और टू, मैं 1 या 2 दिन में मर जाता। कन्फाइंड टू माई कॉर्नर, क्योंकि मैं अपने कॉर्नर से ही मानो कन्फाइंड, वहीं तक रेस्ट्रिक्ट हो गया था। नो फूड, नॉट एन एना टू अर्न, ना खाना था ना पैसा था। इम्प्रिजन्ड इन माई कॉर्नर, मानो मुझे अपने कॉर्नर में ही जेल हो गई थी। आई शुड हैव पेरिश्ड इफ़ इट कंटिन्यूड फॉर अनदर डे, अगर एक दिन ऐसा और चलता तो मैं मर चुका होता। बट दिस थिंग रिटर्न, लेकिन ये जो डॉग है ये लौट आया। when last night at midnight as I slept in bed he came and licked my face, रात को जब मैं अपने बिस्तर में सो रहा था ये आया और इसने मेरे फेस को लिक किया। I felt like murdering him, मुझे इतना गुस्सा था कि मुझे लगा कि मैं इसको मर्डर कर दूं। I gave him a blow which he will never forget again, said the blind man, और मैंने इसे एक ऐसा ब्लो, ऐसी मार दी है जो ये कभी भूल नहीं पाएगा। I forgave him, मैंने इसे माफ़ किया। After all a dog, आखिर ये एक डॉग ही तो है। He loafed as long as he could pick up some rubbish to eat on the road, ये तब तक घूमता रहा जब तक कि इसे कुछ खाने को मिलता रहा। But real hunger has driven him back to me, लेकिन जो वास्तविक भूख है वो इसे मुझ तक वापस ले आई है। But he will not leave me again, लेकिन अब ये मुझे नहीं छोड़ के भाग पाएगा। See, I have got this, देखो मैं ये लाया हूँ। And he shook the lead, it was a steel chain this time, और उसने इस बार डॉग को किसी टेप से नहीं बल्कि स्टील चेन से बांधा है, जिससे वो डॉग अब कभी बच नहीं पाएगा। Once again there was the dead despairing look in the dog's eyes, और अगेन एक बार फिर उसकी आंखों में वही दुख भरा लुक था। Go on you fool, cried the blind man, shouting like an ox driver, again ox driver की तरह चिल्लाते हुए ब्लाइंड मैन कहने लगा जाओ भागो। He tugged the chain, उसने चेन को खींचा। Poked with the stick, और अपनी छड़ी से उसे पोक किया। And the dog moved away on slow steps, और डॉग धीरे धीरे स्लो स्टेप से मूव करने लगा। They stood listening to the tap tap going away, और जो वो तीनों थे
वो स्टेप टैप को जाने तक वहीं खड़े होकर सुनते रहे। Death alone can help that dog, cried the ribbon seller, looking after it with a sigh. इस पूरे नज़ारे को देखने के बाद में रिबन सेलर ने बहुत ही दुख के साथ कहा कि अब केवल डेथ ही उस डॉग को बचा सकती है। What can we do with a creature who returns to his doom with such a free heart? हम ऐसे क्रीचर का क्या कर सकते हैं जो कि अपने डूम, अपने मिसफॉर्च्यून की तरफ इतने खुले हाथ, इतने फ्री हार्ट से वापस चला आए, जो कि अपनी बर्बादी की तरफ फिर से चला आए। So this is the short story, The Blind Dog. So after analyzing this story, what did you understand? Why the title is given The Blind Dog when actually the dog was not blind? The story is titled The Blind Dog because though the dog was not blind, it followed the beggar's orders blindly. डॉग ब्लाइंड नहीं था, लेकिन उसने बेगर्स के ऑर्डर्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया। अ ब्लाइंड पर्सन हैज़ टू बी गाइडेड बाय समवन एल्स। एक ब्लाइंड पर्सन को हमेशा एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसे रास्ता दिखाए, उसे गाइड करे। बट हियर द डॉग वॉज गाइडेड बाय द ब्लाइंड मैन। लेकिन इस स्टोरी में डॉग को ब्लाइंड मैन गाइड कर रहा था। सो दिस इज़ वाई द टाइटल ब्लाइंड डॉग इज़ अ वेरी एप्ट title given by the author to this short story. Narayan masterfully completes the story with developments in the lives of both central characters in the story, the dog and the beggar. The story's main themes are struggle, connection, human greed, freedom, control, and loyalty. The story is narrated in the third person by an unnamed narrator, and after reading the story, the reader realizes that Narayan may be exploring the theme of struggle. This is a story about human greed and human beings' cruelty towards animals. So I hope this short story is now clear to you all. If you have any queries, any questions, please feel free to write in the comment section. Thank you very much.